को मदद करता हो वो आए और साईं को अपनी नूरानी बयानात से महफूज फरमाए। अलीउद्दीन आलियावी इमाम खतीब खड़िया खड़े थे, ठीक है, हम खड़े हमारी इमाम साहब खड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. तमाम किस्म की तारीफ तौसीफ बड़ाई बुजुर्गी की गिरियाई हम्द सना और सल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हमें और आप सबको इस दुनिया के अंदर महफूज फरमाया और महफूज फरमाने के बाद हम तमाम इंसानों को, हम तमाम लोगों को यूं ही लाचार और बेबस नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें राह रास्त पर लाने के लिए, हमें सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनगिनत अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तो सबसे पहले दरूद और सलाम नाज़िल हो उन तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, हाज़िरीन मजलिस, प्यारे बच्चों और अजीज साथियों, आज के इस पुररौनक महफिल में मैं जिस उन्वान, जिस मौजू, जिस टॉपिक के तहत आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं वो है इंसान खसारे में क्यों, यानी इंसान घाटे में क्यों, इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, है कि नहीं भाई, कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अब आपको मन से नमाज हम नहीं पढ़ते तो घाटे में क्यों रहेंगे। आप पांचों वक्त की आजानों में जब मुअज्जिन आजान देते हैं तो क्या सदाएं लगाते, हय्या अलस सलाम, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जब मुअज्जिन पांचों वक्त की आजानों में जब हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सदा की आवाज बुलंद करते, लेकिन उसकी आवाज पर हम और आप लब्बैक नहीं करते। हम और आप इंसान जो खसारे में है, इसकी वजह, बड़ी वजह जो और अहम वजह जो है
وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے تو پھر یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ہم اور آپ دنیا داری میں تلاش کرتے، حالانکہ کامیابی کہاں ہے؟ نماز۔ کامیابی نماز میں ہے، لیکن آج ہم اور آپ دنیا میں چاروں طرف ٹھوکر کھائے پھرتے کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھا کر کے کہا، کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ویسے ہی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے، اور قسم کھا کر کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جب ہم سے اگر کوئی کچھ بات پوچھتا ہے تو بھائی صاحب ہم یہ کام نہیں کیے، ارے نہیں مولانا صاحب تم ہی نے کیے ہو، نہیں یار ہم نہیں کیے، قسم کھا کر کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کیے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہماری باتوں پر اعتماد کر لیتے، بھروسہ کر لیتے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ویسے ہی بیان کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کے اندر جتنے چیزیں تھے سارے کے سارے چوکنے ہو گئے، کہ آخر جب اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے تو پھر ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ ایسی کیا بات ہوگی جو اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے؟ تو زمین کے اندر جتنے سارے چرند پرند جتنے تھے سارے کے سارے چوکنے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کے اندر جتنے ساری چیزیں پائے جاتے ہیں سارے کے سارے چوکنے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں تمہیں یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اے جنوں تمہیں بھی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں مخاطب کر رہا ہوں انسانوں سے، اور انسانوں سے میں مخاطب کرتا ہوں ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہوں، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ اب جب سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی کوئی راستہ بتایا ہوگا اس گھاٹے سے بچنے کے لیے۔ آخر ہم سب کو اس گھاٹے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو کیا ایمان لے آنے کے بعد کیا ہم اور آپ کامیاب ہیں؟ ہم اور آپ کامیاب نہیں۔ ایمان صرف لے آنا ہی کافی نہیں ہے، ورنہ سب لوگ ایمان لاتے، سب لوگ بولتے بھائی صاحب ہم مسلمان، مسلمان کا مطلب وہی ہوا جو ایمان لائے۔ اب اس کا مطلب کیا سارے لوگ کامیاب ہو؟ نہیں، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، نیک اعمال کیے۔ اور نیک عملوں میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر چیزیں۔ نیک عملوں میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو عمل صالح کے، جو نیک عمل کیے۔ آج ہم اور آپ نیک عمل تو کرتے ہی نہیں۔ نیک عملوں میں جو سب سے اہم جو ہے نماز، تو بھائی ہم آپ پڑھتے نہیں۔ ارے مول صاحب یہ ٹھنڈی پر نماز کا نام مت لیجیے، کیوں؟ نماز وضو بنانے میں بہت ٹھنڈا لگتا ہے، وضو بنانے میں بہت ٹھنڈا لگتا ہے، اس لیے ٹھنڈی پر نماز کا نام مت لیجیے آپ۔ میرے بھائیوں،
जो लोग बेचारे नमाज पढ़ते हैं क्या उन्हें ठंडी नहीं लगती है? आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप लोग जो इतने सुबह उठ करके जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, क्या आप लोगों को ठंडी लगती है कि नहीं लगती है? और बेचारे वही लोग नमाज पढ़ने जाते हैं जो कुछ ज्यादा ही उम्र के हो गए हैं। बाकी जो नौजवान लड़के हैं वो तो मस्जिद के करीब ही नहीं आते, वो तो मस्जिद के करीब ही नहीं आते। एक शख्स ने कहा था, यही कोटिया के है, एक शख्स ने कहा था कि मौलवी साहब पहले जमाने में हम लोग सुनते थे कि आजान सुन करके शैतान भाग जाता, आजान सुन करके शैतान भाग जाता, लेकिन आजान सुन करके आजकल के नौजवान भाग जाते, आजान सुन करके आजकल के नौजवान भाग जाते। और बात हकीकत है भाई, बात हकीकत है कि हम और आप नमाज नहीं पढ़ते, हम और आप जो घाटे में रहते हैं इसकी वजह यही है कि हम और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर हकीकत में हम और आप नमाज पढ़ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे जो वादा किया है कि हम तुम्ही को सरबुलंदी देंगे, हम तुम्ही को हुक्मरां बनाएंगे, शर्त है कि तुम पहले पक्के सच्चे मोमिन बन करके दिखाओ। आज हम और आप नमाज नहीं पढ़ते, क्या वजह है नमाज नहीं पढ़ते? अगर आप चाहते हैं कि हम बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे तो फिर भैया आप सोच लीजिए कि जो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनकी उम्र 40-45 क्रॉस कर चुकी है, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि चचा जान आप नमाज पढ़ते हैं, कहीं उठने बैठने में आपको परेशानी तो नहीं हो रही है? आप नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन उठने बैठने में परेशानी होती है कि नहीं होती है? आप उनसे पूछ सकते हैं। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है उठने बैठने में, किसी का घुटना दर्द, किसी का हाथ दर्द, किसी के कमर दर्द, कमर सीधा ही नहीं होता है, बुढ़ापे के आसार नजर आने लगते हैं। और ऐसे वक्त में जब आप सही से नमाज पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसी टाइम में आपको नमाज पढ़ करके क्या फायदा, क्या फायदा हो? जब जवानी रहती है तब हम और आप ऐश करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी हमको और आप सबको दिया है, इस जवानी को गनीमत समझिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सारी चीजों का सवाल तो करेगा ही करेगा। जवानी के बारे में एक अलग से सवाल करेगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारी, तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी? ये जवानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अलग से सवाल करेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये जो जवानी दी है, इस जवानी को गनीमत समझिए और उसके मुताबिक अमल कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बतलाया? इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और सालेह अमल भी किए। उसके बावजूद हम और आप अभी भी कामयाब नहीं, उसके बावजूद हम और आप अभी भी कामयाब नहीं है। फिर क्या करना होगा? आखिर भैया हम ईमान भी ला चुके हैं, नमाज रोजी भी करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, अमले साले करने लगे, फिर हम कामयाब क्यों नहीं? फिर क्या करना होगा उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वतवासौ बिल हक, हक बात लोगों तक पहुंचानी, हक बात लोगों तक पहुंचानी। आप नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नमाज पढ़िए, लेकिन आप जो नमाज पढ़ते हैं, आपको चाहिए कि आप अपने घर वालों को भी नमाज की तलकीन करें, आप अपने मोहल्ले वालों को भी नमाज की तलकीन करें। मेरे प्यारे साथियों, जिसके लिए हम और आप इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, जिसके लिए हम और आप नमाज रोजे की परवाह नहीं करते हैं, याद रखिए हम और आप नमाज छोड़ करके इतनी ऊंची जो बिल्डिंगें बना दिए हैं, इतने ऊंचे मकानात बना दिए हैं, कल वही बेटा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब आप इस दुनिया से कोच कर जाएंगे, जब आप मर जाएंगे, कल क़यामत के दिन आप अपने नेक अमलों की वजह से, आप अपने अमाल की वजह से आप जन्नत में जा रहे होंगे। आपका लड़का जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और मशक्कत की, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, कल वही बेटा
दौड़ता हुआ आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेगा, ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, बाप तो हमारा जन्नत में जा रहा है, ये दुनिया में खूब नमाज पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह ये रातों को उठ करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, लेकिन ऐ अल्लाह मैं दुनिया में इसकी औलाद था, ऐ अल्लाह दुनिया में ये मेरा बाप था, ये खुद नमाज पढ़ने जाया करते थे, लेकिन मुझे एक मर्तबा भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया करते थे। ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, बाप हमारा जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में जा रहा हूं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी घसीट करके जहन्नम में फेंक दे। इसलिए आपको अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ते हैं, आप अमले साले करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने घर वालों को भी नमाज की तलकीन करें, नमाज का हुक्म दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने की हुक्म दे। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 7 साल से 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनको पीट पीट करके मस्जिद की तरफ रुख करो। आज बताएं ईमानदारी से, हम और आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं? हम और आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करते हैं? नहीं करते हैं। बाप बेचारे 60-70 साल के हो चुके, खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बेटे को क्या करें? मजाक नहीं कर रहे, हकीकत में कसम खुदा की उधर देखते हैं, इस रोड में तो मेरा आना जाना बहुत कम रहता है, हमेशा मैं उसी रास्ते से मैं घर आता हूँ जाता हूँ। बूढ़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं उसको, पिड़कों में बैठे रहते हैं, घर के बाहर में बैठे रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते। आप क्या चाहते यार? अगले इतवार को एक जनाब मौलाना खुर्शीद साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ। आज हम और आप एक नमाज जनाजा पढ़े। अब क्या चाहते, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? रोजाना हम और आप आए दिन देखते रहते हैं, यही एक ही हफ्ता के अंदर 2-2 लाश, 2-2 लोग इस दुनिया को छोड़ करके कूच कर गए, चले गए। अब क्या चाहते हैं, हम हमेशा ही रहेंगे? नहीं। आज पूरा खुतबा लगभग पौने घंटा का खुतबा हुआ था। पूरा खुतबा आप लोगों ने सुना कि इस दुनिया के अंदर जितने इंसान आए हैं सभी को एक ना एक दिन छोड़ करके जाना ही होगा। ये दुनिया फना और खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फना होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर शख्स को मौत का मजा चखना होगा। जब आप हर आए दिन देखते रहते हैं कि फला जगह फला शख्स से इंतकाल हो गए, फला जगह फला शख्स से इंतकाल हो गए, हम और देखते रहते हैं और उसकी नमाज़े जनाजा में भी शरीक होते हैं, लेकिन हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती है? हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती है? मरने के बाद कसम खुदा की कफे अफसोस मलोगे, मरने के बाद कफे अफसोस मलोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहोगे अल्लाह हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। जब इस दुनिया से आप चले जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहोगे अल्लाह हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हमें थोड़ा सा मोहलत और दे दीजिए, ऐ अल्लाह हमें एक मर्तबा और तो चांस दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या करोगे? कहोगे अल्लाह हमसे बड़ी गफलतें हुई, बड़ी कोताहियां हुई, हमने अपनी जिंदगी को बहुत मौजो मस्ती के साथ गुजारे हैं, ऐ अल्लाह तू एक बार और चांस दे दे, हम एक एक सेकंड तेरी इबादत में गुजार देंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको जो कुछ करना होगा इसी रहती दुनिया में ही करना है। आपको जो कुछ करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिंदगी दी है इसी जिंदगी ही के अंदर करना होगा। तो क्या इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़, हक बात लोगों तक पहुंचानी है। तो क्या हम कामयाब हो गए? अभी भी हम कामयाब नहीं, अभी भी हम और आप कामयाब नहीं है। फिर क्या करना होगा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र, आपको सब्र भी करनी है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ते, आप नमाज पढ़ते, आप अपने बाल बच्चों को भी, आप अपने मोहल्ले वालों को भी, आप अपने गांव वालों को भी नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत बुरी आदत है, चलो नमाज पढ़ने के लिए। तो वो शख्स क्या जवाब देता है? अरे यार
कल से नमाज पढ़ रहे हो, चले हो, हम जा रहे, हमें समझाने चले हो। कल से जो तुम नमाज खुद पढ़ रहे हो, कल से और आज चले हो हमें समझाने के लिए। ऐसा सुनने को मिलेगा आपको, और ऐसा सुनने को मिलेगा तभी जाकर के आप कामयाब हैं। और ऐसा सुनने को अगर आपको नहीं मिला है तो आप कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दावत और तबलीग के काम क्या करते थे, जब आप लोगों को बताया करते थे कि फला चीज करना चाहिए, फला काम करना चाहिए, फला काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को दावत और तबलीग का काम देने के लिए पहुंचे। ताइफ वालों ने आपको इतना मारा कि सर आपका फट गया, खून के फव्वारे निकलने लगे, खून के आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में आकर के जम गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि अगर आप हुक्म करें तो मैं इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के दरमियान रख करके चटनी बना देंगे। अगर आप सिर्फ इशारा कर दीजिए मैं इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान रख करके पीस देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग मुझ पर ईमान ना लाते हो तो ना लाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्ल मुझ पर जरूर ईमान लाए। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। हमें और आप सबको उल्टी सीधे चीजें सुनने को मिलेंगे। आप जब लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे तो आपको भी खरी खोटे सुनने को मिलेंगे। ऐसे हालात में क्या करना होगा? वतवासौ बिस्सब्र, ऐसे हालात में आपको सब्र करना होगा, तब जाकर के हम और आप एक अच्छे और कामयाब मोमिन बन सकते हैं। तो हमारे इंसान जो घाटे में है, इसकी वजह क्या है हम और आप अच्छी तरीके से समझ गए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को पक्के सच्चे 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए। इस दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, जो बीमार हो रहे शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, और जो कर्जदार है उनके कर्ज की अदायगी अता फरमा, और जो हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये थी हमारे